हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, जिसके अंदर बैक्टीरियल, वायरल, फंगाई या पैरासाइटिक अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। तो चलिए देर किस बात की, आओ स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शंस। फर्स्ट एमसीक्यू। A 64-year-old formerly healthy woman is admitted to the general ward for evaluation of gastrointestinal complaints. Colonoscopy is scheduled. However, 48 hours after admission, before the procedure is performed, she develops a productive cough with prolonged sputum and chest pain. Her temperature is 38.5 degrees centigrade. Her heart rate is 86 beats per minute and her blood pressure is 125 by 85 mm of Hg. Figure shows a representative chest CT image with the exception of CRP of 128 mg per liter. A normal concentration is less than 5 mg per liter. There are no abnormalities in the blood tests. Local epidemiology indicates an 8% prevalence of multi-drug resistant bacteria including MRSA, only 8%. अब उसके MCQs कौन से दिए हैं वो मतलब देख लेते हैं ऑप्शंस. Which antibiotic regimen should be prescribed? Single agent against gram-negative pathogens paired with MRSA coverage, dual gram-negative anti-pseudomonal coverage without MRSA coverage, dual gram-negative anti-pseudomonal coverage paired with MRSA coverage, monotherapy with ertapenem, ceftriaxone, cefotaxime, moxifloxacin or levofloxacin, and last one है a single ग्राम नेगेटिव एजेंट विदाउट MRSA कवरेज. तो सबसे पहले ये MCQ को समझते हैं. जनरल वार्ड के अंदर ये पेशेंट को एडमिट होने के 48 आवर एडमिशन के बाद, मतलब जो कोलोनोस्कोपी हो गई उसके बाद पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ, स्पुटम और चेस्ट पेन डेवलप हुआ है. मतलब यहाँ पे फीवर भी है, टेकिकार्डिया भी है और CRP काफ़ी ज़्यादा है, 128 है. मतलब वो सिवियर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हमको सजेस्ट करता है. अब ये CT की इमेज देखे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मतलब न्यू डेवलप्ड हो रहा हो ऐसा लग रहा है. तो ये पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI या हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया हो ऐसा हम सस्पेक्ट कर सकते हैं. अब कर्व 65 क्राइटेरिया के हिसाब से हमको न्यूमोनिया की सिवियरिटी गिननी चाहिए. तो यहाँ पे उसकी एज तो लेस देन 65 है. बाकी के यूरिया, रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया है. पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं मतलब दिखाया है. पेशेंट स्टेबल है. ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है. तो यहाँ पे ये कर्व 65 के हिसाब से माइल्ड के अंदर फिट आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे राइट आंसर आएगा मोनोथेरापी विथ ertapenem, ceftriaxone, cefotaxime, moxifloxacin और levofloxacin. Second one, a 59-year-old man presents with a 2-week history of fever, night sweats, cough productive of blood streak sputum and left-sided chest pain. He is an active smoker with 20 pack years history. His medical history is notable for diabetes mellitus, which is treated with oral anti-diabetic agents. He reports no relevant occupational exposure or recent travel. On general examination, he appears flushed with an oral temperature of 38.7 degrees centigrade and a heart rate of 105 beats per minute. An ECG shows sinus tachycardia and no other abnormalities. His blood white cell count is 18,000 with 85% neutrophils and his CRP is 186 mg per liter. A chest radiograph and CT scan are performed, which are shown below. The patient is admitted to the hospital and commences intravenous ampicillin sulbactam and metronidazole. Sputum culture remains negative. Flexible bronchoscopy shows hyperemic mucosa of the left upper lobe segmental bronchi with mucopurulent secretion, but no endobronchial lesions. Cultures of bronchial washing grow Klebsiella species and cytology is negative for malignant cells. On day 10 of admission, the patient is afebrile with a mild dry cough, normalization of the white cell count and reduction of CRP to 15 mg per liter. Repeat radiology shows reduction of the left upper lobe lesion. So what is the best course of action at this stage regarding the left lung lesion? ये उसकी CT की एक बार इमेज देख लेते हैं. यहाँ पे ये पूरा लंग एब्सेस जैसा कैविटी है और थोड़ा फ्लूइड लेवल भी है, मतलब लंग एब्सेस जैसा ये CT के पिक्चर से हमको लग रहा है. अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एट दिस स्टेज रिगार्डिंग द लेफ्ट लंग लीजन. तो
सबसे पहले उसके ऑप्शंस देख लेते हैं. रिफर द पेशेंट टू अपर लोबेक्टोमी, स्टॉप एंटीबायोटिक्स एंड प्लान ओपीडी इमेजिंग इन 4 weeks, कंटिन्यू विथ ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर 3 weeks with follow-up imaging, obtain a CT-guided percutaneous biopsy from the lesion, continue IV antibiotics until lesion resolution on follow-up imaging. तो सबसे पहले ये पेशेंट को यहाँ पे लंग एब्सेस सबसे पहले तो डेवलप्ड है ऐसा लग रहा है, और पेशेंट डायबिटिक भी है, और फर्दर कल्चर में क्लेब्सियला स्पीसीज भी ग्रो हुई है. पर डे आफ्टर मतलब एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद ऑन डे 10th ऑफ द एडमिशन पेशेंट फेब्रल हो गया है, ओनली माइल्ड ड्राई कफ है, वाइट ब्लड सेल काउंट जो कि पहले 18,000 थे वो भी अब इम्प्रूव होने लगे, और सीआरपी भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब पेशेंट इम्प्रूविंग कंडीशन में है आफ्टर स्टार्टिंग आईवी एम्पिसिलिन सल्बेक्टम एंड मेट्रोनाइडाजोल. तो ये पेशेंट लंग एब्सेस है ये कंफर्म हो गया और अभी इम्प्रूविंग फेज में है, बट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वी हैव टू कंटिन्यू लंग एब्सेस एंटीबायोटिक रेजिमेन अप टू 21 days फ्रॉम द डे ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट. तो अभी अपर लोबेक्टोमी करने की ज़रूरत अभी ये कंडीशन के अंदर नहीं लग रही है. स्टॉप एंटीबायोटिक तो ऑब्वियसली नहीं यहाँ पे प्रीफर होगा. सीटी गाइडेड परक्यूटेनियस बायोप्सी भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है आफ्टर 10 days of antibiotics. कंटिन्यू आईवी एंटीबायोटिक्स अंटिल कंप्लीट रिजोल्यूशन फॉलो इमेजिंग ये भी फिट नहीं बैठ रहा. तो जनरली लंग एब्सेस के अंदर जनरली पेशेंट अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो या डायबिटिक हो या प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड थेरेपी पे हो तो उसके अंदर एस्पिरेशन की वजह से जनरली इस टाइप की लंग एब्सेस डेवलप होती है. अब इसके अंदर नॉर्मल लंग एब्सेस के अंदर या एस्पिरेशन न्यूमोनिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और एनारोब्स सच एज क्लेब्सियला, ई कोलाई वगैरह आइडेंटिफाइड होते हैं. तो इस बैक्टीरिया को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए हमको एंटीबायोटिक्स 3 weeks तक कंटिन्यू करनी चाहिए और फिर उसके बाद फॉलोअप इमेजिंग से कंफर्म करना चाहिए. तो सी, कंटिन्यू विथ ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर 3 weeks with follow-up imaging is the right answer here. Third MCQ. A 35-year-old never smoking manager had been hospitalized for pneumonia in the right lower lobe. Representative thoracic CT images are shown below, such as left panel. She was successfully treated with amoxicillin clavulanic acid. Her past medical history reveals that she suffers from pneumonia every 1 to 2 years, always in the same location. In between, she is healthy and has no dyspnea and dry or cough. Due to this history, 4 months later, CT is repeated, which is shown in the right panel. So, what is the most probable diagnosis? Cystic bronchiectasis, echinococcus lung disease, tuberculosis, pulmonary sequestration और bronchial stenosis. तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर हमको थोड़ा नॉलेज हो तो क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर हमको मिल जाएगा. पेशेंट को सेम लोकेशन के अंदर न्यूमोनिया हो रहा है एवरी 1 to 2 years. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पैनल में यहाँ पे पैच पूरा दिख रहा है. ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस तो नहीं लग रहा है बट थोड़ा बहुत एयर ब्रोंकोग्राम जैसा हमको लग रहा है. और ये राइट साइड पे है तो इसको सिस्टमिक सप्लाई अदर देन तो थोड़ा सा कैविटी के बाहर से कोई सप्लाई हो ऐसा लग रहा है, और ये पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है. तो ये यहाँ पे राइट आंसर आएगा पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन. Fourth one, a 26-year-old formerly healthy HIV negative woman presents in December complaining of increasing dyspnea, cough and mild fever over the last few days. She doesn't take any medication and is non-smoker. A chest CT is performed. Which of the following disorder is the least compatible in this setting? ये हम CT की इमेज देख सकते हैं यहाँ पे. क्लासिकल मतलब क्रेजी प्रेविंग है, थोड़ा ग्राउंड ग्लासिंग है और थोड़े बहुत यहाँ पे हेड ट्रैपिंग जैसा भी दिख रहा है. क्रेजी प्रेविंग टिपिकल हम देख सकते हैं. कोविड-19 न्यूमोनिया सबसे लिस्ट कंपेटिबल क्या है ये हमको सिलेक्ट करना है. कोविड-19 न्यूमोनिया की तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखते ही हैं, ऐसा होता ही है. माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की वजह से जो न्यूमोनिया हो रहा है उसके अंदर भी बायलेटरल क्रेजी प्रेविंग, ग्राउंड ग्लासिंग अपीयरेंस होता है. पीएपी में ऑब्वियसली होता है और डिफ्यूज एल्यूलर हेमरेज में भी होता है. बट न्यूमोसिस्टिस जेरोवेके न्यूमोनिया के अंदर इस टाइप का कॉमनली फीचर हमको नहीं दिखाई देता. तो यहाँ पे बी पीसीबी मींस न्यूमोसिस्टिस जेरोवेक्सी न्यूमोनिया राइट आंसर आएगा.
Fifth one, a 74-year-old man is admitted with fever 38.8 degrees centigrade and dyspnea on exertion that has worsened during the past week. His breathing rate is 24 breaths per minute. His heart rate is regular at 111 beats per minute. Blood pressure 143 by 81 mm of Hg. SpO2 is 89% on ambient air. He is a retired farmer and has suffered from polymyalgia rheumatica for 5 years. He is treated with prednisolone 20 mg per day and 17.5 mg subcutaneous methotrexate weekly. He is a never smoker. After admission, he receives intravenous ceftriaxone and oral clarithromycin. 3 days after admission, SpO2 is 85% with 4 liters per minute oxygen via nasal cannula, and the patient becomes dyspneic with the slightest exertion. He is intubated and mechanically ventilated. अभी उसकी CT स्कैन की इमेजेस दिख रही है. So which test will most likely be diagnostic? Galactomannan, beta-D-glucan, soluble IL-2 receptor, Legionella antigen यूरिन में से और इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे पेशेंट हाइपोक्सिक है, टेकिकार्डिया है, ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, रिटायर्ड फार्मर ऑक्यूपेशन से और पोलीमायल्जिया रूमेटिका 5 ईयर से है. उसकी वजह से पेशेंट स्टीरॉयड क्रोनिक स्टीरॉयड थेरेपी और 17.5 mg मिथोट्रेक्सेट पे मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यहाँ पे पेशेंट को जा रहे हैं काफ़ी टाइम से 5 ईयर से. तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हुई तो उसको पीसीपी का इन्फेक्शन होने के रिस्क सबसे ज़्यादा है. और यहाँ पे ये सीटी स्कैन की हम इमेज देखो तो यहाँ पे न्यूमोमीडियास्टिनम दिख रहा है, यहाँ पे एक इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब भी दिख रही है, राइट साइड थोड़ा न्यूमोथोरेक्स हो ऐसा भी लग रहा है. तो ये जनरली और SpO2 85% है 3 days आफ्टर एडमिशन. तो न्यूमोथोरेक्स है, हाइपोक्सिया है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये हमको पीसीपी की तरफ हमको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो न्यूमोसिस्टिस एरोवेक्सी का इन्फेक्शन पेशेंट को लग गया होगा ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं. तो उसके डायग्नोस्टिक के लिए अगर हम देखें तो सबसे स्पेसिफिक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के हिसाब से देखें तो सीरम बीटा डी ग्लूकेन पीसीपी के डायग्नोसिस के लिए कंफर्म होगा. बीटा डी ग्लूकेन हाईवर कैंडिडा और एस्परजिलस के जैसे फंगाई के सेल वॉल में भी होता है, बट फॉर पीसीपी उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है. गैलेक्टोमेनन जनरली एस्परजिलोसिस के इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सोल्यूबल IL-2 सार्कोडोसिस में यूज़ किया जाता है. लेजियोनेला एंटीजन यूरिन जो लेजियोनेला या लेजियोनेरिस डिसीज या लेजियोनेला न्यूमोनिया के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. और इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे पीसीपी हम हमारा मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस लग रहा है, तो उस हिसाब से बीटा डी ग्लूकेन यहाँ पे राइट आंसर आएगा. 6th one, 45-year-old woman with recently diagnosed HIV infection is referred for dyspnea, non-productive cough and fever. She is in reduced general condition with temperature 38.7 degrees centigrade, pulse rate 92 beats per minute and blood pressure 115 by 75 mm of Hg. Arterial blood gas analysis on ambient air shows pH 7.45, PCO2 41 mm Hg, PaO2 74 mm Hg and bicar concentration 22. The serum beta D glucan level is 310 pg per ml. Upper limit of the normal is 80 pg per ml. The chest radiograph is normal. Methanum and silver stain of induced sputum reveals pneumocystis girovecii cysts. Upon specific request, the patient reports being allergic to trimethoprim sulfomethoxazole. So, which of the following is false regarding this patient? यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेशेंट को पीसीपी इन्फेक्शन हो गया है और रेजिस्टेंट टू क्वाट्रीमोक्साजोल है, राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग दिस पेशेंट? तो पीसीपी जनरली एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स होगा तो ही होगा, तो फर्स्ट वाला तो राइट है. ट्रीटमेंट विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इंडिकेटेड, ओके ये देखते हैं बाकी के ऑप्शंस. द नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ इज कंसिस्टेंट विद न्यूमोसिस्टिस एरोवेक्सी न्यूमोनिया. हाँ, वो इनिशियल स्टेज में नॉर्मल एक्सरे हो सकता है पीसीपी में. Treatment with clindamycin plus primaquine is appropriate, yes, because patient is allergic to trimethoprim sulfomethoxazole, so ये भी right है. Elevated serum beta D glucan concentration is consistent with the diagnosis, yes, ये तो है ही, हमारे लास्ट MCQ में हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इंडिकेटेड, वो यहाँ पे फॉल्स रहेगा क्योंकि पेशेंट अभी उतना वर्जन नहीं हुआ है.
जनरली ड्रग ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पीसीपी के पेशेंट में ट्राइमिथोप्रिम सल्फोमिथोक्साइजिल है। और अगर इफ दे आर एलर्जिक टू दोज मेडिसिन, यहाँ पे जैसे मेंशन किया है प्राइमाक्विन क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। बट स्टीरॉयड अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप होगा, उसकी सिवियरिटी पीसीपी की बढ़ जाएगी, तभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ट्रीटमेंट विथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इंडिकेटेड। 7th MCQ. An 86-year-old man with no previous medical history except mild obesity, which is BMI 31.2 kg per meter square, was diagnosed with severe bilateral pneumonia due to SARS-CoV-2, मतलब कोविड इन्फेक्शन हो गया है। टेम्परेचर ऑन एडमिशन was 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, SpO2 86% on room air, and 93% with oxygen at 4 liter per minute via nasal cannula. His breathing rate was 24 breaths per minute. CRP concentration was 92 mg per deciliter. D-dimer concentration was 1100 milligram per deciliter. Renal and hepatic blood tests are complete blood count were normal. The initial CT is shown in figure. He was started on remdesivir, dexamethasone 6 mg per day, enoxaparin 40 mg per day, and oxygen at 5 liter per minute. Within 4 days, he becomes progressively more dyspneic with SpO2 90 on 15 liter per minute via oxygen via non-rebreathing mass means NRBM को 15 लीटर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। ब्रीथिंग रेट 28 ब्रेथ्स पर मिनट, मतलब टैकिपनिया भी है। CRP concentration 130 mg per deciliter, डी डाइमल concentration 2320 हो गया, जो कि पहले 1100 था। द रिपीट सीटी स्कैन इज शोन इन फिगर। ये पहले का सीटी स्कैन है, इनिशियल सीटी स्कैन, और ये बाद का सीटी स्कैन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन दिस पेशेंट? डेक्सामिथाजोन, एनाकिंड्रा, एनोक्सापेरिन, एस्पिरिन और फेमोटिडिन। तो सबसे पहले ये एमसीक्यू तो हम समझते हैं। पेशेंट कोविड की शिकायत की वजह से मतलब एडमिट हुआ है, उसको हाइपोक्सिया है, फीवर भी है, और नेजल ब्रोंक पे सीआरपी भी 92 है। बट आफ्टर और रेमडेसिविर, स्टीरॉइड्स और एनोक्सापेरिन वगैरह कंटिन्यू चल रहा है। 4 डेज के अंदर उसका रैपिडली वर्जनिंग हुआ है, और अगर हम सीटी स्कैन भी देखें तो उसके अंदर भी ग्राउंड ग्लासिंग काफ़ी वर्जनिंग हुआ है। पेशेंट सिम्टोमेटिकली भी वर्जनिंग हुआ है, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब फीलिंग डिफेक्ट यहाँ पे विजुअलाइज हो रही है। सो आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल थ्रू, यहाँ पे राइट आंसर आएगा एनोक्सापेरिन 80 mg ट्वाइस डेली, क्योंकि ये एम्बोलिज्म भी हमको सबसे पहले रिलीफ करना है इससे भी, और पेशेंट का डी डाइमर भी बढ़ा है, और पेशेंट अभी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है ताकि पेशेंट ज़्यादा बेड रिडन होगा। तो डीवीटी के प्रोफाइलिसिस के लिए और जनरली एम्बोलिज्म के प्रोफाइलिसिस के लिए हमको यहाँ पे जो एंटीकोएगुलेंट का डोज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो कि पहले जो एनोक्सापेरिन 40 mg पर डे जा रही थी, उसका डोज इंक्रीज करके हमको एनोक्सापेरिन 80 mg ट्वाइस डेली करना पड़ेगा, विच इज मोस्ट इफेक्टिव हियर इन दिस पेशेंट एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो यहाँ पे सी आंसर राइट है। 8th one, a 42-year-old previously healthy man is admitted because of intermittent fever up to 40 degrees centigrade, night sweats, dyspnea when climbing a flight of stairs, and a pleuritic pustulous exanthema that developed over the past 2 weeks. His heart rate is regular at 111 beats per minute, heart breath rate is 24 breaths per minute, temperature 38.9 degrees centigrade, blood pressure 119 by 70 mm of Hg, and SpO2 is 87% on ambient air. He originates from Kenya and has worked as a gardener since he immigrated to Switzerland 4 years ago. He last visited Africa 6 months ago. HB is 9, MCV 84 FL, platelets 324 into 10 raised to 9 per liter, and leukocytes are 26.6 with 40% eosinophils. So यहाँ पे eosinophils ज़्यादा है, वो लास्ट में सबसे मेंशन किया है। बस एक्सरे और सीटी स्कैन देखें तो बायोलेटरल थोड़ा ग्राउंड ग्लासिंग और हेजीनेस यहाँ पे हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरापी फॉर दिस पेशेंट? आइवरमेक्टिन, आर्टिसोनेट, HRZD मतलब आइसोनियाजिड, पैरासिटामोल, एथामिटोल, रिफाम्पिसिन मतलब AKT टीबी की ट्रीटमेंट है, वॉरिकोनाजोल एंटीफंगल या ट्राइमिथोप्रिम सल्फोमिथोक्साइजोल। ओके, तो सबसे पहले ये पेशेंट को अगर हम
हिस्ट्री से इवेल्युएट करें तो यहाँ पे पेशेंट केन्या का है और सबसे पहले ओरिजिनेट केन्या से हुआ है। वहाँ पे वो एज अ गार्डनर तरीके काम के हिसाब से काम करता था। वहाँ से वो स्विट्जरलैंड गया था और उसके बाद अफ्रीका 6 मंथ एगो गया था। तो 14% इयोसिनोफिल्स है और फीवर है, बायोलेटरल हेजीनेस है और थोड़ा बहुत हाइपोक्सिया भी है। तो पेशेंट को वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब स्ट्रोंजाइल और स्टर्कोरेलिस का हाइपर इन्फेक्शन हो ऐसा यहाँ पे ज्यादा लग रहा है और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है आइवरमेक्टिन। तो यहाँ पे आइवरमेक्टिन आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे मलेरिया भी नहीं हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के जैसे कैविटी लीजन या ऐसा कुछ भी सीटी स्कैन में या एक्सरे में नहीं लग रहे। एंटी फंगल मतलब वॉरिकोनाजोल यहाँ पे पेशेंट को इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हो या ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा क्योंकि 14% इयोसिनोफिल्स एस्परजिलोसिस इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के अंदर नहीं आते वो क्राइटेरिया के अंदर। तो वो भी नहीं आएगा और पेशेंट को पीसीबी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि इयोसिनोफिल ज्यादा है। तो आफ्टर गोइंग इनटू ऑल थ्रू ऑप्शंस एंड एक्सरे, सीटी स्कैन एंड पेशेंट्स हिस्ट्री, patient have might suffering from hyper infection due to Stonjar or Stercoralis। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आइवरमेक्टिन ए। नाइन्थ वन, a 41-year-old formerly healthy never smoking insurance agent has been intubated for 10 days due to severe COVID-19 with acute respiratory failure. He has now been back on the ward for 10 days and his SpO2 has improved continuously. However, he still needs 4 liters per minute oxygen via nasal cannula to achieve resting SpO2 of 92% and he desaturated to SpO2 82% when moving from the bed to the in-room toilet. His height is 175 cm, weight 75 kg, blood pressure 114 by 74 mmHg and heart rate 95 beats per minute. His resting blood gases on 4 liters per minute, nasal oxygen are pH 7.47, PO2 8.31 kPa means 62 mm of Hg, PaCO2 3.99 kPa means 30 mm Hg, SpO2 SaO2 92.6%, bicarb 23.7 millimole per liter, glucose concentration is 12.5 millimole per liter and serum electrolytes are normal. His SARS-CoV-2 oropharyngeal smears have been negative for a week. CRP concentration is 5, so normal के अंदर आ गया वो. Kidney and liver values are normal. His plasma anti-factor 10A activity is 0.1 international unit per ml and his hematogram is normal. His current medication consists of dalteparin 2500 international units subcutaneously per day and prednisone 50 mg per day. A representative CT image is shown below. Pulmonary embolism is not present. पेशेंट मतलब कोविड से फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, उसके से धीमे धीमे इम्प्रूव होते होते यहाँ तक आया है. सो विच मैनेजमेंट स्टेप्स इज आर इंडिकेटेड नाउ? NIV start weekly taper of prednisolone by 5 mg per day. Okay, start antifibrotic therapy or increase dalteparin dosage. Okay, fine. तो पेशेंट हम अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री देख सकते हैं कि पेशेंट धीरे धीरे पहले जो उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर था कोविड-19 की वजह से, उससे इम्प्रूव होते होते यहाँ तक आया है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हुई है, राइट. बट पेशेंट स्टिल अभी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो उसको ज़रूरत पड़ ही रही है. वो अभी रूम एयर पर हम नहीं रख सकते क्योंकि वो डिसेचुरेट हो रहा है. तो यहाँ पे पेशेंट को मतलब डेल्टेपरिन डोसेज तो इंक्रीज करना ही चाहिए क्योंकि अभी वो उतना वो मतलब बेड रिडन कंडीशन में उतना भी मोबिलाइज नहीं हो रहा है. तो एक तो डी आंसर आएगा. दूसरा ऑप्शन भी टर्न बाय टर्न देखते हैं. NIV का यहाँ पे अभी रोल नहीं लग रहा क्योंकि 4 लीटर ऑक्सीजन पे उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी मतलब अच्छे इम्प्रूवमेंट पे है, तो NIV की जरूरत नहीं लग रही. वीकली टेपर ऑफ प्रेडनिसोलोन 5 mg पर डे. ओके, तो यहाँ पे पेशेंट का अगर हम स्टीरॉयड देखें तो पेशेंट अभी भी क्रोनिक स्टीरॉयड थेरापी पे 50 mg पर डे चल रहा है, तो उसको हमको टेपर करना चाहिए क्योंकि पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. तो ये आंसर भी राइट है. एंटीफाइब्रोटिक का कोई गाइडलाइन के अंदर अभी दिखाया नहीं गया कि उसको कोविड के अंदर हम यूज कर सके या सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो, तो एंटीफाइब्रोटिक थेरापी का यहाँ पे कोई रोल नहीं लग रहा. तो यहाँ पे आंसर आएंगे बी और डी. वीकली टेपर ऑफ prednisolone by 5 mg per day as well as increased dalteparin dosage. So B and D are right answers. 10th one, 50-year-old man is admitted to hospital with a 2-week history
of cough productive of discolored sputum. He also has fever, anorexia and malaise. He has no past history of respiratory disease but is a current smoker at 20 cigarettes daily. He is hypoxic with an SpO2 of 91% on ambient air, tachypneic, and there is audible bilateral wheeze on auscultation. The patient's admission chest radiograph is shown below. Laboratory results at presentation are CRP 170, neutrophil count 24,000, 24 into 10 raised to 9 liter per minute. The patient's HB was 117 gram per liter 5 days ago, but is currently 67. मतलब काफी HB fall हो गया है. With normocytic normochromic red cell indices. Inspection of a blood film shows marked red cell agglutination with spherocytes, polychromasia, and nucleated red cells. Further results include reticulocyte count 10%, LDH 900 unit per liter, and total bilirubin 64 millimole per liter. The direct anti-globulin test DAT is strongly positive for anti-C3D but negative for anti-IgG. ये उस पेशेंट का एक्सरे है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजिकल एजेंट. यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे लेंथी बनाया गया है ताकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट अगर देखें तो यहाँ पे पेशेंट को ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है, उसका एचबी फॉल हो रहा है, एलडीएच इंक्रीज हो रहा है और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पॉजिटिव है, रेटिकुलोसाइट 10% है, मतलब यहाँ पे एक्टिव हिमोलिसिस जैसा लग रहा है. तो ये मोस्ट कॉमनली हमको माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के अंदर दिखेगा और बायलेटरल पेशेंट को हेजीनेस भी है, राइट. तो यहाँ पे राइट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया आएगा. सो डी इज द राइट आंसर. 11th one. A 32-year-old school teacher represent to the emergency room complaining fever over the past 3 days. She is 30 weeks pregnant and has no remarkable prior medical history. She reports 10 days of dry cough, myalgias, mild right ear pain, and sore throat. In the past 3 days, she developed progressive dyspnea and fever up to 39 degrees centigrade. Her primary care physician prescribed treatment with amoxicillin 2 days ago, but her symptoms haven't improved. On physical examination, temperature is 38.2 degrees centigrade. Her vital signs are otherwise normal, including SpO2 of 94%. Her pharynx is edematous and right-sided inspiratory crackles are audible on her chest. Blood laboratory analysis shows leukocytes 14.8 thousand with 92% neutrophils. CRP is 80 mg per liter. Serology tests are pending. So, which of the following is most appropriate treatment option for this patient? So, continue monotherapy with amoxicillin, change treatment to doxy, continue amoxicillin and cotrimoxazole, add azithromycin to current regimen, stop amoxicillin and start levofloxacin. तो ये पेशेंट को देखे तो वो 30 वीक प्रेग्नेंट है, उसको फीवर है 3 डेज से और ड्राई कफ, माइल्जिया, सोर थ्रोट, ईयर पेन है और फेरिंग्स भी इडीमेटस है विद फीवर है और थोड़ा बहुत हाइपोक्सिया भी है. तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पेशेंट को माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो ऐसा मालूम पड़ रहा है. थोड़ा डब्ल्यूबीसी काउंट भी एलिवेटेड है, न्यूट्रोफिलिक रिस्पॉन्स है, सीआरपी भी काफ़ी ज़्यादा है. तो अभी सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं पेंडिंग है. माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यहाँ पे लग रहा है. तो यहाँ पे मोनोथेरापी एमोक्सिसिलिन कंटिन्यू करने का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा बाय यूजिंग दिस ओनली एमोक्सिसिलिन मोनोथेरापी, तो ये तो नहीं आएगा. डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो वो भी नहीं यूज़ कर सकते. कोट्रीमोक्साजोल ऐड करने से पेशेंट को मतलब जो उसका बेबी आएगा उसको कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे, तो वो भी नहीं आएगा. एजिथ्रोमाइसिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टॉप एमोक्सिसिलिन लीवोफ्लॉक्सासिन से भी कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे डी है, एड एजिथ्रोमाइसिन टू करंट रेजिमेन, ये राइट आएगा. तो एमोक्सिसिलिन के साथ साथ अगर हम मोनोथेरापी मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो पेशेंट को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा एज फार एज माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे डी, एड एजिथ्रोमाइसिन टू करंट ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर. A 12th one, a 76-year-old man with idiopathic bronchiectasis, predominantly at the bases of both lungs, suffers from an exacerbation of his chronic productive cough. The sputum grows Pseudomonas aeruginosa and he receives intravenous therapy with ceftazidime and tobramycin. Earlier this year, he already had 3 cycles of antibiotic therapy against Pseudomonas aeruginosa.
So what is the most appropriate treatment to start? Inhaled steroids, inhaled colistin, oral mucolytic, oral treatment with NTM, oral moxifloxacin. तो ये तो काफी सिंपल यहाँ पे आंसर है. इडियोपैथिक ब्रोंकिटिस है लोअर लोब्स के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सूडोमोनास एरोजिनोसा ऑलरेडी है और पेशेंट सेफ्टाजिडेम और टोब्रामाइसिन थेरेपी पे चल रहा है, बट उसको रिपीटेटिव इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसकी कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म हो गई है. तो और पेशेंट को 3 साइकिल्स ऑफ एंटीबायोटिक पहले से दी गई है. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इडियोपैथिक ब्रोंकिटिस के अंदर इनहेल्ड कोलिस्टिन हमको कंटिन्यू करना चाहिए टू कंप्लीटली इरेडिकेट सूडोमोनास एरोजिनोसा, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म हो चुकी है. तो क्रोनिक थेरापी 3 या 6 मंथ तक इनहेल्ड टोब्रामाइसिन या कोलिस्टिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू स्टार्ट इज इनहेल्ड कोलिस्टिन, आंसर बी. 13th one is 56-year-old obese man with arterial hypertension is admitted to the hospital due to severe dyspnea. 10 days earlier, he suffered from fever and cough. A nasopharyngeal swab at his family doctor's office at that time had revealed positive SARS-CoV-2 PCR, मतलब COVID-19 positive है. Shortly afterwards, he presented with rapid respiratory deterioration and must be intubated and ventilated. He is treated with dexamethasone 6 mg IV and prophylactic heparin. A representative section of the chest is shown below. On day 10 of the stay in the intensive care unit, he shows clinical improvement and can be extubated. Dexamethasone is stopped. 2 days later, he experiences respiratory deterioration with SpO2 of 95%. यहाँ पे उसकी CT स्कैन की इमेज है, क्लासिकल देख सकते हैं. यहाँ पे बायोलेटरल फ्लफी ग्राउंड ग्लासिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे एयर ट्रैपिंग भी लिख रहा है, टिपिकल जो कोविड के पेशेंट में हम देखते थे वैसा. सो विच इज द लीस्ट लाइकली रीजन फॉर द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिटेरियोरेशन. तो ये कोविड-19 पेशेंट को कंफर्म है. पेशेंट ARDS मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर में धीरे धीरे जाएगा ऐसा लग रहा है आफ्टर लुकिंग टू हिज चेस्ट CT एज वेल एज हिज वाइटल पैरामीटर्स. तो क्या क्या डेवलप हो सकता है. तो कोविड-19 पेशेंट के अंदर जनरली पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम देख सकते हैं, बैक्टीरियल को इन्फेक्शन भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया ऑब्वियसली देख सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स भी कई कोविड-19 पेशेंट की वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है, राइट, जो इंट्यूबेटेड रहते हैं. बट प्लूरल इफ्यूजन कोविड-19 न्यूमोनिया के पेशेंट में सबसे लिस्ट लाइकली है. तो यहाँ पे ई प्लूरल इफ्यूजन राइट आंसर आएगा. थैंक यू. ओके, तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में. आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक कर देना. और हाँ, सबसे मेन चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट.